cell and eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Okay. So what is the difference between these two and what is meant by this? When we say pro means earlier, your earliest cell. Cells at the initial level of evolution. So that is prokaryotic cell. And yesterday we have discussed that the biggest cell that we know, it is the egg, bird's egg. It is a single cell, bird's egg. It is a single cell. It has a cell wall. It has cell membrane. It has cytoplasmic plasma. It has a nucleus membrane, but it does not have nucleus membrane. The yellow portion is nucleus. So it does not have a membrane around this. But that part, that yellow part is united to each other, so that we can say that it is an initial level of cell. So it is prokaryotic primitive, as in bacteria. So here one point is, there is no well defined cell nucleus membrane or well defined nucleus. So in eukaryotic, it has well defined nucleus, well defined nucleus with nucleus membrane. Nucleus membrane. Second, in this it has single length of DNA. What is DNA? It is deoxynucleic acid. We all have DNA. So in prokaryotic cell, it is a single length of only deoxyribonucleic acid. Okay. So, but in eukaryotic cell, there are several lengths of genetic material. Several lengths of genetic material. So in genetic material, we will say chromosomes. Genetic material are chromosomes. We have discussed these things. Chromosomes wound containing DNA. Okay. Then it has small ribosomes. And in this, there are large ribosomes. So we have discussed what are the ribosomes. Ribosomes are protein making factory of a cell. Okay. Ribosomes
RIBO, ribosomes. What is ribosome? Ribosome is protein synthesis unit which makes protein, and protein is used for repairing the wear and tear of a cell. Okay, so it has small ribosomes, it has large ribosomes, and no other cell organelle. When we say cell organelle, it means these are the parts of cell. Parts, mitochondria, ठीक है, Golgi apparatus, like that, ribosomes, lysosomes. So it has no other cell organelle except small ribosomes, and but it has uh, organelle. So in this, mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast, etc. Okay, so in this example is bacteria, blue, green algae, etc. And in this, the amoeba, plants, plant cell, and animal cell. Okay, so it is very prokaryotic and eukaryotic cells. समझ लगी? Okay, now we know that in our examination, SSC or any other examination, whenever it comes as science, it means we will get the questions which are related to our environment, day to day activities, general knowledge, general awareness. आगे आ जा भाई, यहाँ पे general awareness. ठीक है? So in that, there is a word that we are discussing now. It is DNA. It is written here. Have you heard about DNA? Deoxyribonucleic acid. You might have heard about this. Okay, DNA. So it is just like fingerprints. We have fingerprints, and we have a very unique fingerprint. It does not relate anyone in this world. We have single unique fingerprint impression. So that is why whenever we go to make Aadhaar card, there they take our fingerprints. It is very unique. Similarly, our DNA is also a very unique configuration. Every person. Okay, so it helps to ascertain the identity of a person.
your identity depends on your DNA. It can be identified that this is the person. DNA. And just like a DNA fingerprinting, we can say like that, DNA fingerprinting. So in 1995, July 1995, there was an dead body of a lady, and that mystery of murder was solved by DNA. First time in India by DNA. So there was certain another body we clue, but we can say clue. जब आप किसी को नाखून मारोगे तो आपके हाथ में थोड़ा सा मांस आ जाता है, like that. So from that they get the DNA of a person who has murdered that lady, and there were two DNAs. One was from mother and one was from father. That means mother and father has murdered their daughter. How they find it out? Through DNA. Okay, through DNA. Even if we want to know who is our father, biological father, sometime a person is adopted son or adopted daughter. But if we want to know who is our father biologically, then we can get it checked through DNA. So that is deoxyribonucleic acid. Okay, through DNA, now the science has elaborated our vision in such a way we can find out of 2000, 3000, or several thousand millions years ago, where did our ancestors live? Do you know? No? Do you know where did our ancestors live? It is a recent study based on DNA. They had taken a sample about 1000 or 2000 people from different locations of this world and in India. Then they find out that just 66 or 70,000 years before, our ancestors were living in Africa. They came to India 66, 65 years ago, lived here. Today we call these as Dravidian. Dravidian. Do you know who is Dravidian? South Indian, Dravid. ठीक है. Their skin color is black. Their skin color is black. So it was said that they were the original ancestors, original persons of this modern, whatever, the Indian continent. But after that, just before 7,000 years before, and another race came to India, that is Aryans. Aryans. ठीक है? Then that had come from this Europe and Middle Asia side. In that way, now we have the provision how to find out our ancestry. समझ लगी इस चीज की कि पहले हमें नहीं पता लगता था, अब हमें पता लगता है एंसेस्ट्री हमारी क्या है. ठीक है, एंसेस्ट्री. तो वो हमारे डीएनए एक्सेट्रास, उनसे ये सारी चीजें आ जाती हैं. अच्छा, हाउ मेनी क्रोमोसोम does a human being have? 46, 23 pairs.
like that. We have did that. Okay, ji. Now next we went to tissue. Once we know about cell, cell makes a tissue. Just like eye, it has a tissue. It has a specific uh, specific function to see. ठीक है. So every cell of this tissue will act in such a way that it will facilitate the function of seeing. Similarly, our heart, it is a tissue. So what is the purpose of heart? To pump the blood. So every cell in this will have a certain function, and it will perform in such a way that it will give its contribution in pumping the blood. हाँ जी, ठीक है. So that is tissue. Now the second topic we are starting with tissue. Again, I will say that we need not to go in depth for bio. We just have to memorize the words DNA, deoxyribonucleic acid, like that. Okay, we do not go for detail with that. It is sufficient to be aware about these various terms. So now here we have tissue. Tissue means we can say a group of cells performing similar one function, a specific function. So we can say a group of cells performing a specific means particular specific function. So किसी एक टिश्यू का नाम लो. हाँ जी, किसी भी. मसल, मसल भी तो टिश्यू है ना. आप बॉडी के किसी पार्ट को भी आप ले लो. आफ्टर टिश्यू it becomes an organ. It becomes an organ. तो ऑर्गन कोई ले लो. ऑर्गन में छोटे छोटे टिश्यूज होंगे. हर टिश्यू में एक अपनी ही तरह के सेल्स होंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, एक ही जैसे सिमिलर सेल्स. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस. नाउ first we start with plant tissues. Plant tissue. In plant tissue, we can divide it in two ways: meristematic. So remember this word. I will explain its meaning, but you have to remember it. Meristematic, and it is permanent. So there are two types of tissues: meristematic and permanent tissue in case of plant. Now meritos means dividing. This type of tissues in this cells divides and grow, बढ़ना,
जहां पे ग्रोथ, प्लांट में कहां पे ग्रोथ होती है? प्लांट में कहां पे होती है? आप इसको इस तरह से समझिए कि यहां पे ऊपर, टिप्स के ऊपर, इट हैज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। टिप पे, वहां पे ग्रोथ होती है, वहां पे ग्रोथ होती है। समझ लगी? मेरिस्टेमेटिक, ग्रो करने वाले टिश्यूज, जहां पे ग्रोथ होगी। ओके, लाइक दैट। सो मेरिस्टेमेटिक, जहां पे डिवीजन होती है, एंड परमानेंट जो है, दीज आर नॉन डिवाइडिंग, and permanent. So once a cell is called as meristematic, after certain period it becomes permanent. जब इसके टिप के ऊपर चला गया, अब इसमें ग्रोथ नहीं होगी, डिवीजन नहीं है, देन इट बिकम्स परमानेंट। तो ये ध्यान रखना। So any cell which was initially meristematic, after certain division and growth it becomes permanent. Now it is permanent, it will not have any growth, कुछ भी ग्रोथ उसमें नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस पता लग गया इसमें, बस। इट इज लाइक दैट। In this, further divided it into meristematic, two parts. One is apical or terminal, and second part is cambium or lateral. Cambium or lateral. So two types of meristematic, apical or terminal. What does it mean by terminal? Terminal, at the end. Terminal means at end. It is just like this. Suppose this is the stem. What is meant by stem? तना, ठीक है, तना. We know it in Hindi, but in English it is stem. Stem. It will grow at its terminal in upward direction, and also it will grow in its thickness. That is lateral expansion, lateral growth. So there is two possibilities of growth. One is at terminal, that is apical. It is apical. Terminal. Meristematic cells. Second is lateral. Lateral means growth in side. डायमीटर इसकी, जो गिर्थ है इसकी, वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाए. Okay, so it is quite easy, but here you must have knowledge what is apical, what is cambium. So you have to remember these things. उसके बाद आसान है, ठीक है? Okay. So when we say permanent tissues,
permanent tissues are of three types. First type of it is dividing according to its function. First is protective tissues. Second one is supporting tissues. Third one is conducting tissues. Conducting tissue. Now it is permanent tissue, permanent protective function, supporting function, and conducting function. So when it is protective, what does it mean by protective? Means providing safety to it. So the cells in protective, it has thick walls, thick cell wall. That is one quality here in protective, thick cell wall to protect it. Second, it is found on surface of roots, leaves, on surface, wherever it is on surface, whether it is in roots, whether it is in leaves, whether it is in stem. स्टेम मीन्स तना, चाहे तने पे है, चाहे लीव्स पे है, पत्तों पे है, जहां जहां पे भी सरफेस है, देयर वी प्लांट हैज प्रोटेक्टिव परमानेंट सेल. अगर ग्रो नहीं कर रहा तो वो परमानेंट है. ओके, परमानेंट सेल. सो ओके, लाइक दैट. सो देयर इज ए टर्म एपिडर्मिस. Epidermis of leaf. Now what does it mean, epidermis? Anji, Chatar Singh, what does it mean by epidermis? हाँ जी, आपको है नहीं, इसीलिए ये हमारा मतलब हमें बायो मुश्किल क्यों लगती है, ये मुश्किल लगती है, हम कहीं पे दो एक्सट्रीम्स के बीच में खड़े हो जाते हैं. वन है इंग्लिश, ये सारा कुछ इंग्लिश में है. सेकंड है जो हमारी लैंग्वेज है, हिंदी पंजाबी. ठीक है. और नाउ अ डेज वी जनरली हैव स्टडीड अप टू 10th क्लास इन इंग्लिश मीडियम. सभी इंग्लिश मीडियम में आए हैं, कोई कोई हिंदी में है, कोई कोई पंजाबी में है. आप हिंदी, आप हिंदी, पंजाबी, आप इंग्लिश, इंग्लिश है. ठीक है. जब आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो हमें कुछ नहीं समझ लगता. हिंदी में भी है, हिंदी में भी है वर्ड्स. ठीक है. एपिडर्मिस को हिंदी में क्या कहेंगे? एक तो जनरल इंग्लिश है ना, जनरल इंग्लिश तो सारे समझ जाते हैं, मैं बोलता हूं आपको समझ लगती है. एक स्पेसिफिक वर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, स्पेसिफिक वर्ड्स. ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स की बात कर रहा हूं, उनको तो ट्रांसलेट कर दो आप तो मुश्किल हो जाती है. तो एपिडर्मिस. ओके. सो हम इसलिए हमें बायो थोड़ी सी, या बायो का कोई भी सब्जेक्ट जो है ना, हमें मुश्किल लगता है, कोई भी सब्जेक्ट. ठीक है. वी जनरली ट्राई टू स्टडी इन बाइलैंग्वेल. बाइलैंग्वेल मीन्स इंग्लिश भी हिंदी दोनों मिक्स करके हम समझते हैं. ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके समझते हैं.
ये इट इज नॉट दैट इट इज ए रॉन्ग वे, ऐसा नहीं है, ठीक है, हम हमारी जो ग्रूमिंग है इसी तरीके से है, बट आफ्टर दैट यू हैव टू लर्न इंग्लिश नाउ अडेज। चाहे आपने 10th तक की है चाहे नहीं की है, आपको थोड़ी 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 इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। ऐसा भी नहीं है कि 10th तक हमने इंग्लिश नहीं पढ़ी, बट साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस की। डर्मेटोलॉजिस्ट, आप कभी गए हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? हाँ जी, हैव यू एवर विजिटेड डर हाँ स्किन डॉक्टर? ठीक है, सो डर्मा मीन्स स्किन। आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, आप जिस डॉक्टर के पास जाते हो दैट इज डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, तो डर्मिस, डर्मिस एपी, एपी का मतलब होता है आउटर, एपी इज आउटर। एक हाइपर, वो नीचे की स्किन के नीचे की सरफेस है, लेयर है। मान लीजिए दिस इज स्किन, तो स्किन के ऊपर आउटर लेयर इज एपी, एपिडर्मिस। स्किन के नीचे की लेयर हाइपर हो जाती है, तो इंजेक्शन हाइपर लगता है, नीचे लगता है ना। ठीक है, इट इज लाइक दैट। सो एपिडर्मिस ऑफ लीव, एपिडर्मिस हिंदी में अगर एग्जैक्ट में मुझे नहीं वर्ड पता, बट इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट, पत्ते की सरफेस, सतह। ठीक है, पत्ते की सतह। बट यू हैव टू रिमेंबर एपिडर्मिस। क्यों? क्योंकि आजकल जब हिंदी में भी कुछ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के, हिंदी में एज इट इज लिख दिए जाते हैं, बस एज इट इज लिख दिया जाता है। सो इट इज एपिडर्मिस ऑफ लीव। Second type of a tissue is supporting tissue. Now one function is protect. तो जो स्किन है वो क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इंटरनल सेल्स को प्रोटेक्ट कर रही है। सो दीज सेल्स हैव थिक वॉल, थिक सेल वॉल। नाउ सेकंड इज सपोर्टिंग, सपोर्ट करना मतलब स्ट्रक्चर को सपोर्ट करना, खड़े रहने में सपोर्ट करना। बिकॉज इन in animals or in humans there is a movement, but in plants it does not have movement. So when it does not have movement, it has to have certain type of cells which will help it in its structure in standing, supportive. So in supportive, these are we can say supporting, three types of terminologies are used here. One, you have to remember this. One is supporting tissue, parenchyma. Parenchyma. Second, parenchyma. Second, it is collenchyma. Third, it is sclerenchyma. So there are three types of supporting tissues. तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन में आएंगे, थ्री टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू आपको पता होना चाहिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नजर नहीं आ रहा? नीचे रख दें। अब आ रहा है? ठीक है, ओके। सो हियर आपको इसी तरह से याद कर लेना है इसको। ठीक है, सो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि इसके मीनिंग निकाल लोगे। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इसी तरह से आएगा।
और फंक्शन क्या है, इट इज सपोर्टिंग। ओके, नोट कर लिया इसको। अच्छा, मैं इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। पैरेन्काइमा में जो अगर आप याद रखो, इट प्रोवाइड्स टेम्परेरी सपोर्ट। टेम्परेरी सपोर्ट इस तरह से लिखना है इसको, टेम्परेरी सपोर्ट, परमानेंट सपोर्ट नहीं, टेम्परेरी सपोर्ट। सो इट इज ए लार्ज थिन वॉल्ड सेल, बड़े बड़े सेल हैं थिन वॉल के साथ, थिक वॉल नहीं, थिन वॉल सेल्स हैं। और इनमें सिंगल लार्ज वॉक्यूल होता है, टेम्परेरी सपोर्ट है। इट पैरेन्काइमा में कुछ पॉइंट्स लिख लो, टेम्परेरी सपोर्ट, थिन लॉन्ग सेल्स, थिन वॉल्ड, लार्ज वॉक्यूल। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज वॉक्यूल, कल हमने पढ़ा। वॉक्यूल है किसी भी सेल में, प्लांट सेल में जो वॉक्यूल है, एक इस तरह से बड़ी सी थैली है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये थैली सी है, इसमें कुछ लिक्विड स्टोर होता है, स्टोरेज, उसको सैप बोल देते हैं, सैप, ठीक है, सैप। तो वॉक्यूल, तो इसमें बड़े जो फूड स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ जो भी है लिक्विड है, तो उसके लिए लार्ज वॉक्यूल चाहिए स्टोरेज के लिए, ठीक है, थैली टाइप कह लो या किसी तरीके से आप समझ लो इसको। तो ये स्टोर फूड्स एज इन पोटैटोज लाइक दैट। तो ये कुछ पॉइंट्स है पैरेन्काइमा, ये इस तरह से आप समझोगे। तो इसमें क्लोरेन्काइमा एक टर्म यूज होती है, इसी के पार्ट में हम यहां पे लिख लेते हैं क्लोरेन्काइमा। अगर मैं आपको टीच नहीं करूं, पढ़ाऊं नहीं, तो आप मेरे को बता सकते हो क्लोरेन्काइमा क्या होगा। इट इज सब पार्ट ऑफ पैरेन्काइमा। क्लोरो कहां से आया है, क्लोरोफिल। तो जिस थैली में क्लोरोफिल भरा हो, जिस सेल में, सेल के अंदर जहां पे क्लोरेन्काइमा, ठीक है, वर्ड से आपको अंडरस्टैंडिंग में इजीनेस होगी। क्लोरो, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोफिल होता है ये, तो वहां पे क्लोरो, ग्रीन कलर जिसको बोलोगे आप, ठीक है, ग्रीन कलर। तो हमें इतना छोटे छोटे पॉइंट्स ही ध्यान में रखोगे, आपको ये अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज अगर आप वैसे पढ़ोगे तो पैरेन्काइमा, तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है क्या है, तो हमें यहाँ पे इसको एज इट इज ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। देन इट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है कोलन मीन्स ग्लू। So these are elongated and cell wall is thickened. So अगर आप पत्ता देखें, पत्ते में दी व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, स्टॉक्स, छोटी छोटी टहनियां, टहनियां सॉलिड होती है ना वो टहनी, तो पत्ते की सरफेस, पत्ते में भी जैसे नसें सी बनी होती हैं वो, अगर और उसके पीछे से कंटिन्यू करती आ रही है, ठीक है। सो दीज दैट इज कोलेनकाइना, कोलेनकाइना। तो वहां पे आप अब समझोगे, ठीक है, कोलेनकाइना। तो ये थोड़ा सा अब हार्ड मटेरियल हो गया इसमें। तो सेल वॉल जो थिकनेड है, सो पर्पस क्या है इसका,
वो ही है सपोर्ट करना, सपोर्टिंग टिश्यू ही है ना ये। सो इट इज सपोर्टिंग द सपोर्टिंग परमानेंट प्लांट टिश्यू। तो इसको हम छोटा सा लिख लेते हैं, फाउंड इन लीफ स्टाइल, लीफ stalks and below epidermis। अब इसको स्टॉक्स तो समझ गए आप, छोटी छोटी टहनियां। बिलो एपिडर्मिस मीन्स जो बाहरी स्किन है उसके अंदर के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, वो कौन से आगे, कॉलन काइमा। ओके, कॉलन काइमा, ठीक है। इसको मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं, आपको जहां पे लगे कि इसको छोटा सा कुछ लिखना है आप उसको अपने वे में लिख सकते हो टू योर अंडरस्टैंडिंग। देन लास्ट इज स्क्लीन काइमा, दिस इज हार्ड। सो इन दिस अगर इसको एक पॉइंट में नोट करना हो तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। दीज आर इन स्टेम एंड वीन्स ऑफ प्लांट। तना जो है, तने में जो टिश्यूज हैं उनको कहा जाएगा सिक्लरीन काइमा। तो अब आप यहाँ पे समझ लगी इसको कि ये सबसे हार्ड होंगे। तना हार्ड होता है ना, टहनी जो है वो इतनी तने के जितनी हार्ड तो नहीं है ना, टहनी वो क्या, उसमें कॉलन काइमा। और जो टेम्परेरी से हैं वो है टेम्परेरी, दैट इज पैरन काइमा। पर ये सारे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सो दीज आर सपोर्टिंग टिश्यूज, दीज आर सपोर्टिंग टिश्यूज। ओके, तो इस तरह से आप समझोगे। मैं अगर आपको इसको जब रिवीजन भी करोगे, हाँ जी, पानी पी के आओ जाके, जब आपने रिवीजन भी करनी है ना, रिवीजन, तो रिवीजन में आप अपने मन में सपोर्टिंग टिश्यू आप तीनों काउंट करना याद करके कि कौन कौन से है, पैरन काइमा है, कॉलन काइमा है, सिक्लरीन काइमा है। फंक्शन क्या है वो तो पता लग गया, सपोर्टिंग है, कहाँ कहाँ पे है तो आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। ये टेम्परेरी सपोर्ट करता है, ये कॉलन काइमा है, ये लीव स्टॉक्स में मतलब टहनियों वगैरह में इसको आता है। एपिडर्मिस, बिलो एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर के नीचे आता है। और जब इसको कहोगे तो ये आप कहोगे कि बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है, स्टेम्स के बीच में आता है। तने में तना ज्यादा हिलता जुलता नहीं है, उसको नहीं, उसकी टहनी जो है छोटी छोटी वो हिलती हैं, वो कॉलन काइमा में, स्टेम सिक्लरीन काइमा में ये आ गया। ओके, अब आता है कंडक्टिंग। थर्ड इज, यहां पे हमने लिया कंडक्टिंग। ये व्हाट डज इट मीन बाय कंडक्टिंग? कंडक्टिंग मीन्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना तो, या हीट कंडक्ट करना। पर अब पेड़ में इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट नहीं होगी, वहां पे जो पानी, फूड, वो कंडक्ट होता है। जैसे हमारे ब्लड कंडक्ट हो रहा है नसों में, वैसे होगा। ठीक है, सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ये याद रखना अब, ठीक है। अगर ये ना, मैं सिर्फ ये ज्यादा लिखता हूं क्योंकि इससे थोड़ा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना। जाइलम, इनको ध्यान में रखना। फ्लोएम, इन पे क्वेश्चन आते हैं, इन सभी पॉइंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम को कैसे याद करेंगे? फ्लोएम
अगर एक हम छोटा सा प्लांट बनाएं तो नीचे इसकी ये जड़ें हैं, ऊपर चले जाएं और ये एक ऊपर लीव कर दिया इस तरह से। What is the function of a leaf? Leaf is a kitchen of the plant. तो यहां से फूड बना, न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए, सारा कुछ। देन फूड विल फ्लो in downward direction, so that is phloem. But here we need water to flow from the tips of roots towards the end tips of leaves, so that is xylem. Xylem बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी जाइलम, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसी तरह से उसमें भी ब्रैकेट में जाइलम ही डाल दिया जाता है, ठीक है। तो आपने फंक्शन क्या ध्यान रखना है, फ्लोएम में क्या है, फूड जाएगा यहाँ पे, जनरली फूड कहाँ से जाएगा, ये पत्तों से बाकी सभी पार्ट्स में जाएगा, रूट्स तक चला जाएगा। तो वो जो नालियां हैं उनको हम फ्लोएम में कहेंगे। नीचे से पानी प्लस दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे से जाएंगे, ऊपर तक चले जाएंगे, तो उनको लेके जाने वाली, दैट इज, इसको हम कहते हैं जाइलम सेल्स। ठीक है, सिंपल। अब याद रहेगा आपको ये, ठीक है, याद रहेगा ना, इसी तरह से ध्यान में रखना है इसको। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं जो हमें याद रखना है। ट्रैकीड्स, इसमें लिखेंगे ट्रैकीड्स, वाटर वेसल्स, ये वाटर वेसल तो है, ये पानी को लेके जाने वाली है, ट्रैकीड्स, देन वेसल्स एंड जाइलम। इसमें ये याद रखना, वेसल्स एंड जाइलम। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा, इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है इसमें, हैव यू सीन स्पिंडल? स्पिंडल क्या होता है, साइकिल का पहिया किसके आसपास घूमता है, होता है ना, दूरा है, बैलगाड़ी है तो दोनों पहियों को किसी के आसपास घुमाते हैं ना, उस तरह से। टकला कह लो, स्पिंडल, ट्रैकीड्स, इस तरह से लॉन्ग सेल्स हैं, लॉन्ग टिश्यूज हैं, ठीक है, लॉन्ग टिश्यूज है, स्पिंडल, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड डेड टिश्यूज,
long spindle shaped dead tissues। ये एक तरह के आ गए। दूसरे जो हैं इसमें सिलेंड्रिकल, ये जो वेसल्स हैं ये सिलेंड्रिकल हैं, ओपन एट बोथ एंड्स। तो पानी उसी में से जाएगा ना, जैसे ये खोल दें एक ट्यूब बन गई, इधर से भी खोल दें इधर से भी, तो इसमें से पानी फ्लो करेगा ऊपर की तरफ। तो सेकंड इज वेसल। फर्स्ट ट्रैकीड्स, ट्रैकीड्स बाहर है, उसने इसको पकड़ रखा है, जो अंदर जो नाली है उसको हम वेसल कह देते हैं। एंड जाइलम पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा हमने क्या कहा था, दैट इज टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, तो उसको टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे जाइलम को, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो इस तरह से तीन नाम इसमें जाइलम में आते हैं, इनको हम इसके पार्ट्स कह सकते हैं। दीज आर दी पार्ट्स, ठीक है, दीज आर दी पार्ट्स। अब सिंपली क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि जाइलम व्हाट इज इट्स फंक्शन, इट्स फंक्शन इज टू टेक वाटर फ्रॉम रूट्स एंड टू ब्रिंग इट टू द एंड ऑफ द लीव्स, टिप ऑफ द लीव्स। तो ये है, तो उसको आप पाइप कैसे बनाओगे, तो आपको पाइप बनानी पड़ेगी ना, एक लगानी पड़ेगी। तो वो पाइप आपने एक सिलेंड्रिकल ओपन एट बेंच सिलेंड्रिकल पाइप ले ली, उसको सपोर्ट भी तो देनी है, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड उसके आसपास हो गए। फिर उसको टेम्परेरी सपोर्ट जो है पैरेन्काइमा, टेम्परेरी सपोर्ट जो है वो दी जाती है, क्योंकि प्लांट में पैरेन्काइमा जो है टेम्परेरी सपोर्ट के लिए। तो इस तरह से जो ट्यूब्स बनी वो जाइलम यहाँ पे आ जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नाउ व्हाट टाइप ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन प्लांट, प्लांट में किस तरह का फूड मिलता है। स्टार्च, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस से बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। तो ये आपने वर्ड सुना ही होगा, स्टार्च, ठीक है। वो स्टार्च ही, उस स्टार्च को ही वो फ्लो कराएगा, ऊपर से नीचे तक लेके जाएगा थ्रू फ्लोएम। तो फ्लोएम में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन सी, तो इसमें आता है सीव ट्यूब, यहां पे आप याद रखना कुछ पॉइंट्स, सीव ट्यूब्स, तो सीव ट्यूब फ्लोएम में है, सीव ट्यूब्स, देन कंपेनियन सेल्स एंड companion cells and phloem parenchyma। तो यहां पे ट्यूब को ट्रैकीड्स कहा गया, यहां पे सीव ट्यूब्स, ये डिफरेंस आपके क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। फ्लोएम में ट्यूब जो है सीव ट्यूब्स, यहाँ ट्रैकीड्स वेसल, यहाँ सपोर्ट्स कंपेनियन सेल्स उसको सपोर्ट करने के लिए, देन यहाँ पे था जाइलम पैरेन्काइमा, यहाँ पे है फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो ये जो आ गई ये फूड है। सो सीव ट्यूब्स ज्वाइंड एंड टू एंड थ्रू क्लस्टर ऑफ पोर्स, इसमें क्लस्टर ऑफ पोर्स, एंड टू एंड जो है सीव ट्यूब्स है इस तरह से, तो इसके ऊपर पोर्स होते हैं, पोर्स समझते हो आप, बारीक छेद, ठीक है। तो जहां जहां पे फूड प्रोवाइड करना है, जरूरत है न्यूट्रिशन, इन पोर से आगे चल प्रोवाइड होता जाएगा, और जो स्टार्च है वो आगे फ्लो करता जाएगा, कहां से, ऊपर
लीव से जड़ों तक वो जाएगा। लीव से वो कहाँ तक चला जाएगा? जड़ों तक। तो आपको क्वेश्चन में अब कैसे आएगा? क्वेश्चन में यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसमें ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा। और एक क्वेश्चन अगर सिंपल सा क्वेश्चन इसमें डालते हैं तो देयर इज ए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, ये क्वेश्चन है। फ्लोइम आप समझना ऊपर से नीचे की तरह फ्लो कर गया, और नीचे से जाइलम, नीचे से पानी लेके जाने वाला जाइलम। तो ये एक सिंपल सा इसमें हमने डिफरेंस देखना है। नाउ इट इज प्लांट टिश्यू, तो हमने प्लांट टिश्यू ये कर लिया। नाउ इट इज एनिमल टिश्यू। ठीक है, इसलिए फिर मैं रिपीट कर देता हूं। तो अब आपने इस चक्कर में नहीं जाना मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, आपने याद रखना है, वर्ड याद रखने हैं। बायो में वर्ड्स को आप रट्टा लगा लो, जैसे मर्जी कर लो, फंक्शन आपको पता लगे, आप आराम से उसको कर सकते हो। ठीक है, इसमें इस तरह से रिवीजन होगी आपकी। जब आप रिवाइज भी करोगे ना तो इन पॉइंट्स को, क्योंकि जो बायो है ना इसको ये डिफिकल्ट हमें क्यों लगती है, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है? यूरोप में हुई है। केमिस्ट्री की डेवलपमेंट कहाँ पे हुई है? वो यूरोप में हुई है। अगर इंडिया में होती तो हम केमिस्ट्री को क्या कहते? रसायन शास्त्र। इंडिया में क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र, यही कहते हैं ना, रसायन, रस। पर अब उसमें कार्बन, कार्बन तो वहां पे बना तो हम उसको कार्बन ही कहते हैं। उसका हिंदी में वर्ड तो कोई नहीं ना है कार्बन का। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रख दिया तो ऑक्सीजन ही हम कहते हैं। ठीक, अगर इंडिया में डेवलप होती साइंस ये, तो हिंदी के वर्ड आ जाते, संस्कृत के वर्ड आ जाते, तो फिर उनको मुश्किल हो जानी थी। पर मुश्किल की कोई बात नहीं, एक बार आपने समझ लिया तो समझ लिया। व्हाट इज योग? योग क्या होता है? दोनों में कौन सा वर्ड ठीक है? दोनों ठीक है। हाँ जी, योगा हम करते हैं ना इंग्लिश में, योगा। हिंदी में क्या कहते हैं? योग। संस्कृत में क्या कहते हैं? योग। योग क्या कहते हैं इसको? एक हमारी स्टेट है, दोनों में केरल है या केरला है? हाँ भाई, जो ब्रिटिशर्स जो प्रोनाउंसिएशन उन्होंने बोला योग, तो क्या उनको योग बोलना नहीं आता था? नहीं, एक्चुअल में संस्कृत में इसकी प्रोनाउंसिएशन ही है योग। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ही है योग। ठीक है, रनिंग हिंदी जो हमारी नॉर्मल हिंदी है उसमें चला जाता है योग, बोलते हैं योग व्यायाम, पर संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन की योग। केरल, पर वहां पे केरला और केरला, तो ये प्रोनाउंसिएशन इस तरह से है। दैट मीन्स व्हेन दे आर पिकिंग अवर वर्ड्स दे आर टेकिंग एज इट इज। ठीक है, एज इट इज ये हमारे वर्ड्स को लेते हैं, जो हमारे वर्ड्स हैं। और जब हम उनकी साइंस, क्योंकि अब ये क्या हो गया है, पूरे का पूरा एक वर्ल्ड जो है अब एक विलेज बन गया है।
आजकल जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, वहाँ के जो गाने सुनते हैं, वहाँ के जो थीम्स हैं उनको देखते हैं, सारा देख रहे हैं ना, समझ आ रही है नहीं आ रही, तो वहाँ पे वो भी आ जाता है ये कैप्शन से। ठीक है, तो वो सारा कुछ समझ में आ रहा है, दैट मीन्स वो क्यों हो रहा है इस तरह से, क्योंकि अब हम कनेक्टिविटी बढ़ गई है। ठीक है, अब कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए? सारी सीख लोगे? हाँ, फर्स्ट यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ योर ओन लैंग्वेज। आपको पहले अपनी लैंग्वेज जो हिंदी है या पंजाबी है वो पता होनी चाहिए। वाई? क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है, ग्रूमिंग है, वो उस लैंग्वेज में हुई जो आपकी मदर लैंग्वेज है, और आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप सोचते भी अपनी लैंग्वेज में हो, जिसमें बच्चा पला बड़ा है ना उसी को सोचेगा। ब्रिटिशर जो है वो इंग्लिश में वर्ड्स को सोचेगा, सेंटेंसेस इंग्लिश में चलेंगे, उसके मतलब थिंकिंग इंग्लिश में होगी, हमारी हिंदी में पंजाबी में होगी। ओके, सेकंड लैंग्वेज दैट यू हैव मस्ट हैव टू लर्न, जो आपके करियर को प्रोग्रेस दे। मदर लैंग्वेज सीख लिया आपने, हो सकता है उसमें आपका करियर नहीं है, बट सेकंड लैंग्वेज दैट यू मस्ट हैव टू लर्न, दैट इज द लैंग्वेज इन विच यू विल प्रोग्रेस इन योर करियर, दैट मेक्स योर करियर। तो करियर का मतलब क्या है? नौकरी, पैसा कमाना है। अगर आपको करियर टीचिंग, संस्कृत टीचर, संस्कृत का टीचर बनना है, तो आप इंग्लिश में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप संस्कृत में ज्यादा दिमाग लगाओ। ठीक है, अगर आपको चाइना में बिजनेस कुछ करना है, तो आप इंग्लिश में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चाइनीज सीखो। रशिया में जाके काम करना है तो रशियन सीखो। ठीक है, ऐसा थोड़ा कि सारे इधर ही जा रहे हैं, कोई कनाडा जा रहा है, कोई तो जापान भी जा रहा है, तो जापानीज। आपको इंडिया में जॉब करनी है, जॉब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो उत्तर प्रदेश, बिहार, हिंदी बेल्ट में, तो आप हिंदी सीखो। अगर आपको पंजाब में जॉब करनी है तो आप पंजाबी सीखो। तमिलनाडु में जॉब करनी है तो तमिल सीखो, क्योंकि कैरियर से रिलेट हो गई। तो एक लैंग्वेज आपकी मदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज आपकी कैरियर वाली लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश हम इसलिए सीखते हैं, थर्ड लैंग्वेज जो सीखनी है दैट इज इंग्लिश, बिकॉज इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। चाइना में भी आप फंस गए, चाइनीज नहीं आती, बट इफ यू नो अ लिटिल बिट इंग्लिश, देन सर्टनली यू कैन बी एबल टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ। समझ लगी? इंडिया में तमिलनाडु चले जाओगे, वहां पे हिंदी थोड़ा बोलते हैं, बट इफ यू विल स्पीक इंग्लिश, सर्टनली यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट। हाँ, एक बड़ी बेल्ट जो है हिंदी, हिंदी में अगर आपको हिंदी आती है तो इधर लगा लो, कहीं पे भी आप हिंदी बोल लो। ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू में, हिमाचल, पंजाब में हिंदी आती है, राजस्थान, ये सारी बेल्ट जो है हिंदी में चली जाएगी। सो क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए जब उन्होंने हमारे वर्ड्स को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, देन यू आल्सो हैव टू अडॉप्ट पैरन काइमा। ठीक है, स्क्रीन काइमा। अब ये एक्चुअल में ब्रिटिशर वर्ड्स भी नहीं है, इनकी रूट्स जो हैं वो लैटिन रूट्स हैं। लैटिन रूट्स, जैसे हम कहते हैं ना, हमारी जो हिंदी की रूट्स हैं संस्कृत रूट्स हैं, वहां पे वो लैटिन रूट्स हैं।
तो उनको भी लर्न कर लिया, तो अब ये प्रोग्रेस है लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस। हाँ जी, टाइम कितना हो गया? 11:30 तक है ना हमारी क्लास। कितने बजे तक है नेक्स्ट? आज 11:30 ना? हाँ, 10 से आप नीचे खड़े थे, क्या हो गया? तो कहीं दूर से भाग के आना था? फिर नींद क्यों आ रही है? हाँ, वो देख चतर सिंह पहले सोता था, आजकल बड़ा अलर्ट है वो। चलो, बड़ी अच्छी बात है। ओके, नाउ second type, there it is, plant cells. We have discussed about this, plant tissue. Now we will discuss animal tissues. तो एनिमल टिश्यू में हम अपने भी कर सकते हैं, वी आर एनिमल हैं, हम हैं एनिमल ही हैं, एनिमल विद ब्रेन, एनिमल किंगडम का ही एक पार्ट है। नाउ वी कैन से दैट वी आर द टॉप ऑफ द क्रिएशन बिकॉज ऑफ आवर डेवलपमेंट इन ब्रेन। तो आपने भी डेवलप करना है, ब्रेन को डेवलप करना है। किसको डेवलप करना है? बॉडी को डेवलप करना है या ब्रेन को? दोनों को करना, वेरी गुड। ठीक है, ब्रेन को डेवलप करना है। इंजॉयमेंट करने के लिए, इंजॉय करना अगर लाइफ को, तो बॉडी डेवलप करो। घूमोगे तभी जाओगे ना। शिमला में अगर गोड्डे नहीं चल रहे, आप शिमला क्या देखोगे? पहाड़ों पे कैसे चढ़ोगे? है ना, स्काई डाइविंग करनी है तो कैसे करोगे? तो बॉडी। पर जब आपने करियर में प्रोग्रेस करनी है तो कैसे करनी है? ब्रेन डेवलपमेंट से करनी है, ब्रेन से, स्टडी से। ठीक है, क्योंकि बॉडी जो है डिट्यूरेट होती है आफ्टर 40 ईयर। इट विल नॉट बी लाइक दैट एज ए यंग पर्सन, but after 40 years you will have a developed mind. With that developed mind you can be millionaire. अब मिलेनियर हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो। सो तो अब जो कैरियर है ना, जो भी कैरियर बनाओ, वो कैसे? ब्रेन जिसमें ज्यादा यूज होता हो वो। सो नाउ इन दिस एनिमल टिश्यूज वी हैव 4 types of parts in this. चलो, मैं इसको आज जितने कर पाता हूं मैं करता हूं, बाकी कल करेंगे। फर्स्ट इज एपिथेलियल। ये मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आपने याद रखना है। एपिथेलियल ये एक छोटा सा पार्ट है जो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट, आज का लेक्चर जो है ना, इट इज टिपिकल। टिपिकल ऐसा नहीं है कि आपको सीधा इसमें आ जाए। इसको जब आज के टॉपिक पे आप लिख भी लो, इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल टॉपिक। जब आप रिवाइज करो तो इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा के करो और रटना है इसको। सेकंड इज कनेक्टिव, connective. Third is muscular and neural. Muscular and neural. Muscular and neurals. दो चीजें तो आपने समझते होंगे कि न्यूरल, हम वी हैव डिस्कस्ड neural nerve tissues. Nerve tissues, so these are neurals. So these are neurons. Where these neurons are? In brains. आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हो उसका एक एक, जितना आप समझते जा रहे हो उसका एक न्यूरॉन बनता, एक कनेक्शन बनता जा रहा है। ठीक है, अगर आप इसको रिवाइज करोगे वो न्यूरॉन और स्ट्रांग होगा, और रिवीजन में जाओगे तो इस तरह से रिवीजन होती है, न्यूरॉन साइकिल है। ठीक है,
जो हमारी हैबिट्स हैं, हैबिट्स कहाँ बन रही हैं? न्यूरॉन्स में बन रही हैं। एक साइकिल है, और जितना आप उसको रिपीट करते चले जाते हैं वो साइकिल उतना परफेक्ट होता चला जाता है, न्यूरॉन्स। ठीक है, सो एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स फ्रॉम नर्व फाइबर्स। तो इसको यहाँ पे ड्रॉ भी किया था मैंने, एक बार फिर कर देता हूँ, लाइक दिस। This is the nucleus. These are dendrites. तो पहले भी बनाया था, these are axons, axons, sorry. These are nerve fibers. What is the function of these axons, neural tissues? It transfers electrical signal from dendrites to this axon ending. ठीक है, ये लंबे होते हैं, लॉन्ग साइज, लॉन्ग होते हैं ये। यहाँ पे उंगली के टिप पे एक डेंड्राइट टच हो गया किसी गर्म जगह पे, तो उस गर्मी से क्या जनरेट हो गया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से आते जाते एक्सॉन एंडिंग तक, उसके बाद इसने नेक्स्ट एक्सॉन को ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से ट्रांसफर होते होते वो कहाँ पे चला जाएगा? ब्रेन तक जाएगा। तो ये नर्व सेल है। ठीक है, इसकी डायग्राम मैंने बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको, इसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये डायग्राम आपके माइंड में होनी चाहिए। व्हाट इज दिस? ठीक है, तो नर्व, एक्सॉन, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स। तो आज हम इतना ही कर पाएंगे, कल हम एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, इससे आगे ये शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ जी, कोई नहीं समझ आया आज? ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। आज का टॉपिक जो है, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, हम जब भी आते हैं न्यूरल, चलो समझ आते हैं, मस्कुलर मीन्स मसल, मसल से ये समझ आ गया ना, इट इज मसल, तो हमें थोड़ा सा ये हो जाता है। व्हाट इज कनेक्टिव? कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं? दो बोन्स को कनेक्ट करने वाला। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है ना, ब्लड भी एक टिश्यू है। देन एपिथेलियल जो है वो कॉलम, जो मसल हमारा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, वो कल हम इसको स्टडी करेंगे। तो हमें प्रॉब्लम यही आती है इसमें, सिर्फ इस चैप्टर में जो आज हमने डिस्कस किया ना, उसमें हमें टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम आती है। तो उसका एक ही इलाज है, टर्मिनोलॉजी को आज आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी है इसको रिवाइज कर लेना। ठीक है, कल आप करोगे तो आप भूल जाओगे इसको। आज थोड़ा सा ही हुआ है ना, 1-1.5-2 पेज लिखे हैं आपने, उसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।